Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see your extra sums from Navneet practice book of chapter statistics. So today we are going to see two exercise 14.1 and 14.2, which is very simple. So let us begin with exercise 14.1. बच्चों, there are only two sums. The first sum says give 5 examples of primary data that you can collect from your day-to-day life. So 5 examples आपको लिखने हैं. तो let us start with number of boys in my class. Next thing, height of boys or girls more than 6 feet. Next, we can write what we say as number of trees in your society campus. Then we can write number of days in a week. ये भी प्राइमरी डेटा है. Lastly, fifth one, we can write number of Sundays in a month. So these are all primary datas. Okay. Now, what is your second sum? Second sum says give 5 examples of secondary data that you can collect from your day-to-day life. So 5 ऐसे डेटास देने हैं. ये था प्राइमरी डेटा. अब सेकेंडरी डेटास देने हैं. So for secondary datas, you all know, first thing, literacy rate in Kerala, let's say. Then number of books in libraries. Right? Then climatic condition of India. Since last 5 years. Then we can say we have many more examples of this type. So you have to collect it in day-to-day life. Total income of family members of 20 students. Total income of family of 20 students. Number of students in entire school. So these are all your secondary data. Now पहले मैं बता दूं, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, लेकिन those who have missed this, what is primary data and what is secondary data. Primary data जो होता है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वैसे डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं. और सेकेंडरी डेटा वो होते हैं कि जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है वहां से हम लोगों को लेके आना है हमारे यूज के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा होता है ये सेकेंडरी डेटा. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 14.1 बच्चों. नाउ वी विल बिगिन विथ योर एक्सरसाइज 14.2, which is again very simple. You simply have to observe what things is given to you. So exercise 14.2, which says the number of books in different shelves of a library are as follows. Represent the data given above a grouped frequency distribution table, taking the class interval as 18 to 22, 22 to 26, etc. अब आप लोगों को ध्यान ये देना है, सबसे पहले जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा आप लोग या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, सबसे पहली चीज फाइंड करनी है रेंज. ये रेंज क्यों फाइंड करनी है? एंड व्हाट इज रेंज? रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये रेंज फाइंड करने का एक स्पेसिफिक रीजन है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक हमको लेके जाना है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर आई गेस इज 37. The minimum number I can see is 20. Okay, so 37 minus 20 and that is nothing but 70. Then we will write class, telemarks and frequency. So start करेंगे। अब 20 है, आपको दे दिया 18 से 22, 22 to 26, 26 to 30, 30 to 34, 34 to 38, क्योंकि अपने मैक्सिमम वैल्यू है 37। नाउ ये कैसे परफॉर्म करेंगे? तो रो वाइज चेक करना है, ठीक है। तो पहली लाइन में 18 to 22 वाले कितने हैं? 1 2, लेकिन 22 को ये क्लास में नहीं, लेकिन ये क्लास में इंक्लूड करना होता है। सो 1 2 and 3 are there in first line like this. Then in second line nothing, and in third line 1 and 2. So total there are 5. Okay, so 18 to 22 में 5 बुक्स ऐसी है जो आपको शेल्फ्स पे मिलेगी, बराबर है, 5 टाइम्स ऐसे होंगे। Then we have 22 to 26, इसमें 22 इंक्लूड करना है और 26 को इंक्लूड नहीं करना है। पहली लाइन में है 2, थर्ड लाइन में है 1, फोर्थ लाइन में है, सॉरी थर्ड लाइन में 2 है, सेकंड लाइन में सॉरी, और फिर 2। सो टोटल 22 to 26 में आप लोगों को मिलेंगे 5 1 6। Then next 26 to 30 में आप लोगों को चेक करना है। So it will be 26 to 30, पहली लाइन में देखो 1 2 3, so 3, 30 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, याद रखना। 1 2 3 एंड 4 है, 1 2 3 और 4, और आखिरी लाइन में देखो 1 2। सो टोटल है 5 and 4 9। मूविंग है 30 to 34 में 30 को अब इंक्लूड करना है। फर्स्ट लाइन देखो 30 to 34, पहली लाइन में एक भी नहीं है आई गेस। नेक्स्ट लाइन में 1 2, थर्ड लाइन में 1 और 2, 34 को इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस इज 4 एंड लास्टली 34 to 38, तो 1 2, पहली लाइन में 2, दूसरी लाइन में 1 ही है, देन 1 2 और 2। सो आप लोग देखोगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो दिस इज, आप लोग 30 to 34 में देखेंगे तो देयर इज वन मोर जो मैंने नहीं गिना था सेकेंड लाइन में, जो था 32, सो इट इज 5। So 5 and 6 11, 11 and 10 21 and 9, total 30, and this is the answer to your very first question बच्चों। Moving ahead, sum number 2 देखेंगे। Sum number second says the marks obtained out of 25 marks by 40 students in examination are as given. Represent the data given above by a grouped frequency distribution table taking the class interval as 0 to 5, 5 to 10, etc. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैंने जैसे बताया था, it will be range,
तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर इज आई गेस 23। सो मैक्स वैल्यू 23 minus mean value. Mean means minimum value. So 23 minus your minimum value is I guess 2. Sorry, 1 is there. So 23 minus 1 and your range is 22. Now class, frequency, sorry, tally marks and frequency. अब आप लोगों के लिए मैंने एक सम में मेथड बता दी है, तो मैं पहले अब क्लास में क्या क्या लिखेंगे आपको दे दिया है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है 23। अब मैं बार बार नहीं देखूंगा, मैं ओवरऑल देख के बता दूंगा। तो 0 to 5 में है टोटल, ठीक है। 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे ये इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है। 1 2 3 4 and 5। देन नेक्स्ट सेकंड 5 to 10 में देखो, 5 to 10 में 5 को इंक्लूड करना है और 10 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 2 3 4 इन फर्स्ट लाइन, 5 6 7 8 9 10 एंड टोटल 11 आते हैं। सो यहाँ पे 11 आएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। देन 10 to 15 में देखो बच्चों, 10 to 15 में आप लोगों को देखने हैं जिसमें 10 को इंक्लूड करना है और 15 को नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 are there. So 1 2 3 4 5 6 and 7. नेक्स्ट 15 to 20 में देखो बच्चों, जिसमें 15 इंक्लूड करना है और 20 को इंक्लूड नहीं करना है। तो पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2 3 4 5 6 7 8 and total 9 are there. So 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And lastly 20 to 25 देखो, तो आप लोगों को देखने मिलेगा 20 इंक्लूड करना है और 25 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो 20 इंक्लूड करेंगे तो पहली लाइन में है 1 2 3, दूसरी लाइन में है 4, तीसरी लाइन में है 5 6 7 8, टोटल 8 आते हैं। सो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल हो गया आपका 40। देख लेना 8 and 9 17 and 7 24 and 11 35 and 5 40। So that's the end of your sum number 2 बच्चों। Moving ahead, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. Prepare a frequency distribution for the data given above. अब देखो 3 ही नंबर है, 0 1 2 and 3। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा वो बनेगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें ना आपको रेंज की जरूरत है। तो स्ट्रेट अवे आप लोगों को लिखना क्या है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सीधा गिन लेना है, क्योंकि इतने ही नंबर्स है, 0 है 1 है 2 है एंड 3 है, और आप लोगों को फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो 0 आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 zeros आर देयर, तो 6। एंड 1 नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स आर देयर, सो दैट इज 10। फिर 2 कितने टाइम्स है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स आर देयर। एंड देन 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 एंड टोटल 5 टाइम्स। नाउ इन सबका टोटल करो, आंसर आपका 30 टाइम्स आना ही चाहिए। 10 and 9 19 and
11, so it is 30. So that's the end of sum number third ratio. फोर्थ वन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सम टेक्स्ट बुक में नहीं देखा होगा. तो फोर्थ इज इंपॉर्टेंट वन, एंड उसमें देखो ऐसा लिखा है, बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ more than type of marks obtained by 50 students in 100 marks examination and prepare the group frequency distribution for them. तो अब देखो आप लोग टेबल देखोगे तो ऐसा लिखा है, obtained marks 0 and more than 0 and number of students are given. ठीक है, 20 और more than 20. So आपको ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास बनेगा ना, वो कैसे बनेगा पता है? 0 and more than 0, फिर दूसरा वर्ड दे दिया 20 and more than 20. तो आपका क्लास होगा 0 to 20 का एक. फिर ऐसे करते करते देखो 20 फिर 40 फिर 60 एंड देन 80. तो इस तरह से 20 to 40 का एक क्लास, 40 to 60 का क्लास एंड 60 to 80 का एक क्लास. एंड 80 और मोर देन 80 है, इसका मतलब क्या 100 मार्क्स की एग्जाम है, तो 80 और मोर देन 80 मींस 80 to 100. ये आप लोगों को करना पड़ेगा. नाउ आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ये आंसर है, मतलब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 20 में है. तो आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ. 50 है, फिर 48 है, फिर 40 है आई गेस, देन 31 है एंड 10 है. तो अब यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे, तो वो लिखा है 0 एंड मोर देन 0, फिर यहाँ पे लिखा है 20 एंड मोर देन 20. अपनों ने क्या किया है, 0 to 20 का एक क्लास बना दिया है. तो यहाँ पे देखो 50 एंड 48, तो डिफरेंस कितना है 2. तो आप लोगों को हर एक का डिफरेंस लिखना है, ठीक है, तब जाके आपको ये मिलेगा. तो 50 minus 48 is 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है, 48 minus 40 8, 40 minus 31 9, 31 minus 10 is nothing but 21. अब देखो अब ध्यान से देखो, ठीक है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, जिसमें से आपके पास ये सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं. 2 plus 8 10, 10 plus 9 19, 19 plus 21 is nothing but 40. तो ये 80 to 100 वाले कितने होंगे टोटल? 10 students, and that's why your answer is 50. And that's the end of sum number 4, which is really very important. वीडियोस बार बार देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, तो you will get this type of sum as well. So that's the end of our practice book session of statistics. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please do like, share, comment and subscribe on my channel, please. And bye bye students. Thank you very much.